नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। हमारे पास मैं सोचता हूं कि 2 पेपर हैं, 2 मैम हैं हमारे साथ, एक के 2 पेपर हैं और एक के 1 पेपर हैं। तो जिनके 15209 पे जो मैम हमसे जुड़ी हैं, मैं आपका पेपर शेयर करता हूं ताकि हम आपको खाली कर दें। फिर जो मैम है हमारे पास, उनके पास 2 पेपर हैं, ठीक है? Yes, sir, you can share the papers. जी, ओके। तो मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन की इस रिव्यू प्रक्रिया में आज केमिस्ट्री के पेपर आपके समक्ष लेके आया हूं और जी, और मैं एक पेपर शेयर करने जा रहा हूं जिसका नंबर है 15209। जी, ये पेपर मैम आपके समक्ष आ गया है और मैं जो हमारी सम्मानित लेखिका मैम है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने पेपर के बारे में हमारे जो रिव्यूअर्स हैं, जो पैनल है, इनको बताएं। जी मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये पेपर जो है मेरा, दिस इज अबाउट द असाइनमेंट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ डिसऑर्डर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय साइक्लोएडिशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग को पता है सर, इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं, ये बता दीजिए। मैम, जैसा आपको सुविधाजनक हो। Okay, sir. So this when we carry out a disorder reaction, the possibility of different isomers, possibility of formation of different isomers is there. दूसरा ये कि disorder reaction takes place between a diene and dienophile. Dienes are considered to be electron-rich system, whereas dienophiles are more active when electron withdrawing group is attached. But here I have taken a 2-acetoxy 2,4-dimethyl system which is having 2 strong electron withdrawing groups. Still it acts like a diene. First thing. Second thing, the product form was exclusively only one isomer, where the possibility of formation of the 2 isomers was there, exo and endo. But here we obtained only one isomer exclusively, and the assignment was made by by studying the dynamic NMR spectrum of the compounds. Compounds were easily prepared, but the dienophile was not very easily prepared. It was prepared by oxidation of metaphenol, metatrisol, and we obtained a 2-acetoxy group just near to the carbonyl system in the ring, which is a very, very rare case. Not, I should not say the rare case, but it is difficult to have 2 very strong electron withdrawing groups adjacent to each other, and then both are present in the ring, but the ring is acting like a dienophile. We got the adduct, which is endo. Endo means not endo to acetoxy. Endo means endo. The anhydride ring is endo to the diene system of the cage dienophile, and we then condensed it with different aromatic amines, and the rotation about the NsP2 CsP2 bond was studied via NMR spectroscopy,
and the result shows, as I have given the data, that duplicacy in the ortho substituent was there. This confirms that during the rotation of the ring, the anisotropic effect of the olefinic system, to which the anhydride ring is endo, is playing a key role. And finally, this was additionally confirmed by brominating the system. Generally, bromination takes place in a trans manner. In any olefin, bromination is observed in trans manner. But in this case, exclusively cis bromination was there, as indicated by the coupling constant in the NMR data. And this is also exo to the anhydride ring. It means anhydride ring is endo to olefinic system, and the bromine atoms are exo to the olefinic system. Overall, this assignment was very, very exclusive, because generally we get an isomer, a mixture of isomers, but here I got a single product with very sharp melting point. Other data are given in my paper. Thank you. Nice, very nice, ma'am. Thank you so much, ma'am. जी धन्यवाद मैम। मैं अपने रिव्यूअर मैम से पूछना चाहता हूं कि मैम को इस पेपर में अगर कोई आपका सजेशन हो या सवाल हो तो आप प्लीज पूछें। सेकंड रिव्यूअर मैम। जी मैम एल्डोल कंडेंसेशन किया है इधर? नहीं, कंडेंसेशन नहीं किया, मैंने साइक्लो एडिशन किया है। साइक्लो रिएक्शन, ओके। डिसऑर्डर रिएक्शन किया है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन किया है। और एक्सक्लूसिव चीज है जो हमारा डाइन है, क्योंकि डाइनोफाइल विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब वेरी एक्टिव, ये बहुत सारे रिपोर्टेड है, बट डाइन विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप is not very common. Dynes with electron releasing groups are common, because dynes are supposed to be very electron rich to perform a cycloaddition reaction. How much time you have taken? The maximum time which preparation of dyne was a time consuming factor. It took at least 15-20 days, because sometimes impurities were there, sometimes incomplete oxidation was there. Lead tetraacid reacting with lead tetraacid is also a difficult task. And moreover, we cannot reflux the cresol with lead tetraacid for 30 hours, and continuous heating was not possible. Yes, so so in stepwise heating, then it took us some longer time. Then purification was there, sometimes incomplete oxidation was there, then I have to repeat the reaction. So preparation of dinophile was a time-consuming task, but after that, when I treated with maleic anhydride, it doesn't take much time, and then condensation also took 3 to 4 hours, and after that analysis में जितना भी time लग गया। Okay. वो तो डिपेंड करता है कि whenever they give the result, when I gave the samples for the IR NMR spectrum and dynamic NMR conduct किया गया, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगा। Good, very good, nice. Okay, thank you. जी मैम, आपकी तरफ से पेपर अप्रूव हुए। फर्स्ट रिव्यूअर मैम से पूछूंगा, मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम से पूछूंगा कि पेपर आगे जा सकता है। क्या कह रहे सर, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम से पूछ। अच्छा इस पेपर को। हाँ, सेकंड रिव्यूअर मैम भी हमारे साथ हैं। मैम, क्या इस पेपर पे आपका कोई सवाल या कोई सुझाव? मैं एक चीज मैम से पूछना चाहती हूँ कि मैम ने यहाँ पर रिजल्ट डिस्कशन में मेंशन किया है एलिमेंटल आइसोलेटेड प्रोडक्ट बना था, उसका एनएमआर। एक मिनट मैम, क्या चीज आप? मैम उसका आपने इसलिए पेपर में कहीं उसका स्पेक्ट्रम मेंशन नहीं किया है, अगर आप वो मेंशन कर दें। स्पेक्ट्रल डाटा सारा दिया हुआ है, एनएमआर की कुछ स्पेक्ट्रम्स आपके पास हो तो आप इस पेपर में मेंशन कर दीजिए। सारे एनएमआर स्पेक्ट्रल डाटा दिए हुए हैं। हेलो मैम, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैम आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में देखिए, स्पेक्ट्रल डाटा सारे दिए हुए हैं इसमें। और मैम थोड़ी रेफरेंसेस एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कुछ लेटेस्ट रेफरेंसेस भी अगर ऐड हो जाए तो बेहतर है,
रेफरेंसेस चलिए। काफी पुराने हैं, आप थोड़े लेटेस्ट रेफरेंसेस इसमें ऐड कीजिए। क्या ऐड करो? References. लेटेस्ट रेफरेंसेस। लेटेस्ट रेफरेंसेस भी ऐड है मैम, आप चेक करिए प्लीज। मैम मुझे जो मैं देख के बता रही हूँ है, आपको। उसमें देखिए ये रेफरेंसेस आपके स्क्रीन पे दिखाई 77, दे रहा है 74, 2019 का 80, हाँ 78, एक मिनट, लास्ट रेफरेंस है मैम 2000, सिर्फ 2008 का एक रेफरेंस आपने डाला हुआ है और एक 18 80। मैम 2014 का है, 2018 का है। Nine- रेफरेंस मैम नंबर 10 नंबर 12 पे देखिए आप। एक्चुअली तो ये मेन ऑथर है, रेफरेंस नंबर 12 देखिए, इनसे ही मतलब हमको आइडिया मिला है। अच्छा, ये 19 is the last. हाँ हाँ, ये 10 नंबर पे देखिए 2019 19 is इज the द लास्ट। last. 19 is the last. रेफरेंस 10 2019 में लास्ट रहा। रेफरेंस नंबर 12 बचाओ यंग, ये 2018 का है मैम। नहीं, वो नहीं, नहीं, 2018 के 10 नंबर 10 देखिए तो उसमें आपको 2019. Just a minute ma'am, let me see it, 2000, 10th number. 91, 10th number. 2019. ma'am there are total 14 references and आप अपने हाँ yes screen पे हाँ देखिए, yes 2019 है मैम, Oriental Journal of Chemistry, right? So 10th रेफरेंस जी। Yes ma'am. क्या 19 2019. This is 2018 का भी It reference will है, work. 2019 है। 19 के और मैम रेफरेंसेस जो हैं। 2018 का रेफरेंस है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट वो थे जिन्होंने कि इस टाइप के डाइस पे काम करना शुरू किया है। अच्छा, मैं सेकेंड रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ। क्या 19 का तो लेटेस्ट रेफरेंस मिल गया है, क्या हमको और भी लेटेस्ट चाहिए या ठीक है अभी? ठीक है, नहीं ठीक है सर, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ठीक इसके है। बाद काम और- नहीं हुआ है, किसी ने पेपर पे वर्क नहीं किया तो कोई नहीं चलेगा सर उस पर। अच्छा, वो नहीं, नहीं। रिजल्ट और डिस्कशन जी। कोविड भी हो गया ना, तो उसमें तो काम हुआ ही नहीं ड्यू टू बिल्कुल, कोविड। बिल्कुल। हाँ तो 19 का अच्छा, हम लोग और वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी सब ठीक है? अभी मैम ने आपको बताया कि रिजल्ट एंड डिस्कशन में मैम ने दिया हुआ है स्पेक्ट्रम का, या क्या बोल रहे थे? ये एक्सपेरिमेंटल ठीक है डाटा है। सर, हाँ, एक्सपेरिमेंटल डाटा है और एनएमआर वगैरह कराया हुआ है, तो रिजल्ट सारा सही है। मैम तो ठीक है, फिर ओरिजिनल इस पेपर है। अरे इस पेपर को अप्रूव माने मैम, रिव्यूअर मैम? यस सर। नहीं, मैं दोनों रिव्यूअर मैम से पूछ रहा हूँ कि इस पेपर को अप्रूव माने या अभी Yes. कुछ कमी है? नहीं, कमी तो नहीं है अकॉर्डिंग टू माई साइड। जी ठीक है। सेकेंड रिव्यूअर मैम से भी पूछ लूं, क्या कोई कमी है मैम? नहीं नहीं सर ठीक है, बस उसमें रेफरेंसेस का ही था, वो 19 के बाद उसमें शायद वर्क नहीं हुआ होगा बिकॉज ऑफ कोविड, तो इट कैन वर्क, हाँ, इट विल गो। ठीक है। तो ये रिव्यूअर ये जो है पेपर को मैं अप्रूव करता हूँ, जो 15209 है हमारे सामने। इसमें खाली इतना बताना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड और फिर एम ऑफ द स्टडी साइट जुड़ी हुई है, उसको हम इंट्रोडक्शन के बाद लेके आएंगे। वो फॉर्मेशन में हम उसको ठीक कर लेंगे, प्रूफ रीडिंग के लिए आपको भेजेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है मैम, फिर आपको बहुत बधाई, आपको इस अच्छे पेपर के लिए बहुत बधाई, अच्छे से लेने के लिए बधाई। थैंक यू हम सो आपको मच पेपर सर। सर एक जी, हम इस रिक्वेस्ट पेपर है को मेरी, जी मैम। वो जब आपने मेरे को फाइनल प्रूफ रीडिंग के लिए भेजा था ना, तो मुझे पता जी नहीं था, मैम। मैंने उसमें अपनी फोटो ऐड कर दी है, प्लीज मेरी फोटो रिमूव कर दीजिएगा अपलोड करने के पहले। मैम वो आप जो है मेल पे भेज दीजिए, जो आप भेज दिया पेपर को सर देख मैम। रहे होंगे। हाँ सर, भावना मैम के मेल पे मैंने भेज दिया है। वो जो प्रूफ रीडिंग है, पेपर हमारे यहाँ छपेगा तब तक नहीं हाँ जब तक हाँ आपकी अंतिम हाँ सहमति हाँ नहीं मिल हाँ, जाएगी। भावना आप मैम ने भेजा था प्रूफ रीडिंग के लिए, तो उसके बाद उनके रिस्पॉन्स में मैंने भेज दिया है कि फोटो रिमूव कर ठीक है दे मेरी। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। थैंक आप चाहें तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, वरना हम लोग दूसरे पेपर को ले रहे हैं अपने पास। और अच्छा, अगर ठीक है सर, जी, अगर मेरा काम हो गया है तो मैं छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं हाँ, सुबह में आप कॉलेज में प्लीज थी, आप अभी प्लीज अभी क्विट आई कर थी। दीजिए, क्विट कर दीजिए, प्लीज ओके, क्विट कर थैंक यू दीजिए सो जी, मच, धन्यवाद थैंक यू। जी जी।